Next is calcium metabolism. So, what is the importance of calcium in our body? Calcium is very essential for many activities in the body. What all activities? Bone and teeth formation. As we all know, bone and teeth cannot be formed without calcium. So, for the formation of bone and teeth, calcium is very essential. Then next is for neuronal activity, for skeletal muscle activity, cardiac activity, smooth muscle activity, secretory activity of the glands, cell division and growth, and coagulation of blood. So calcium is very essential for many activities in the body such as bone and teeth formation, neuronal activity, bone and teeth formation, neuronal activity, skeletal muscle, all the muscles, skeletal muscle, smooth muscle and cardiac activity, skeletal muscle activity, smooth muscle activity and cardiac activity, secretory activity of the glands, cell division and growth and coagulation of blood. जो ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रीटरी एक्टिविटी नहीं होगी कैल्शियम के बिना, सेल्स की डिवीजन नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी और ब्लड की कोएगुलेशन भी नहीं होगी विदाउट कैल्शियम. सो नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है कैल्शियम की? नॉर्मल जो यंग हेल्दी अडल्ट है उसमें 1100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम होता है इन बॉडी. सो इट फॉर्म्स अबाउट 1.5% ऑफ टोटल बॉडी वेट. जितना भी हमारा बॉडी वेट होता है उसका जो 1.5% है टोटल बॉडी वेट का, 1.5% क्या होती है हमारी? कैल्शियम. And 99% of calcium is present in the bones and teeth and the rest is present in the plasma. अब जो हमारा टोटल बॉडी वेट है, फॉर एग्जांपल किसी का जो बॉडी वेट है वो 60 kg है, तो उसका 60 kg का जो 1.5% है वो कैल्शियम होगी उसकी बॉडी में. 60 किलोग्राम वेट का 1.5% जो है वो कैल्शियम होगा. 99% ऑफ कैल्शियम इज प्रेजेंट इन द बोन्स एंड टीथ. अब जो टोटल कैल्शियम है, जो 100% कैल्शियम है हमारी बॉडी में, उसका जो 99% है वो किस में होगा? बोन्स और टीथ में सिर्फ. और जो बाकी है रेस्ट इज प्रेजेंट 1% है, जो वो रेस्ट इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा. नॉर्मल जो ब्लड कैल्शियम लेवल है, दिस इज समटाइम्स आस्क्ड एज एन MCQ. Normal blood calcium level ranges between 9 to 11 milligram per deciliter. This is very, very important. Normal blood calcium level, not plasma calcium level, blood calcium level ranges between 9 and 11 milligram per deciliter. 9 and 11 milligram. Sometimes they change only units, and sometimes also they change blood calcium level, or they will ask plasma calcium level. So blood calcium level ranges between 9 to 11 milligram per deciliter. Then the types of calcium. Calcium in plasma. Calcium is present in the three forms in plasma: ionized or diffused calcium, non-ionized or non-diffused calcium, and calcium bound to albumin. So in plasma, calcium is present in three forms: ionized or diffusible, ionized, non-ionized, and calcium bound to albumin. So first is ionized, second is non-ionized, and third is calcium bound to albumin. First is ionized or diffusible calcium. It is found freely in plasma and forms about 50% of plasma calcium. ये जो आयोनाइज्ड कैल्शियम होती है ये फ्रीली घूमती है प्लाज्मा में, और जो टोटल प्लाज्मा कैल्शियम लेवल होता है उसका 50% आयोनाइज्ड होती है. और बहुत सारे जो वाइटल फंक्शंस हैं बॉडी के, जैसे कि मसल कंट्रैक्शन, न्यूरोनल एक्टिविटी, मसल कंट्रैक्शन, कार्डियक एक्टिविटी, ग्लैंड्स में सिक्रीशन होती है, जो ब्लड कोएगुलेशन, उन सब के लिए जो आयोनाइज्ड फॉर्म है वो बहुत ज़रूरी है. जो नॉन आयोनाइज्ड और नॉन डिफ्यूजिबल कैल्शियम है वो नॉन आयोनिक फॉर्म में होती है, सच एज कैल्शियम बाइकार्बोनेट. इट इज़ अबाउट 8 to 10% ऑफ प्लाज्मा कैल्शियम. जो नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म होती है वो नॉन आयोनिक फॉर्म में होती है, such as calcium bicarbonate. जो ionized form होती है that is freely that moves freely in plasma, and it is about 50% of total plasma calcium level, and it is essential for all the vital functions of the body such as neuronal activity, muscle contraction, cardiac activity, secretions in the glands, and blood coagulation. And the non-ionized or non-diffusible calcium, which cannot be diffused, so it is present in non-ionic form such as calcium carbonate, and it is about 8 to 10% of plasma calcium. And next is calcium bound to albumin. It forms about 40% to 42% of plasma calcium. So it forms about 40 to 42% of plasma calcium. So 50% of plasma calcium is in ionized form, 40% of plasma calcium is in calcium bound to albumin,
and 10% of only 10% of plasma calcium is in non-ionized form. Then is the calcium in bones. Calcium is constantly removed from bones and deposited in bone. जो कैल्शियम है वो लगातार बोन से रिमूव की रिजॉर्ब भी, मतलब बोन्स में से रिमूव भी हो रही है और बोन में डिपॉजिट भी हो रही है. बोन कैल्शियम इज प्रेजेंट इन टू फॉर्म्स, रैपिडली एक्सचेंजेबल एंड स्लोली एक्सचेंजेबल. दो फॉर्म्स में बोन में कैल्शियम होती है. बोन्स की जो कैल्शियम है, एवरीबडी नोज कैल्शियम इज देयर इन द बोन्स. एंड इन विच फॉर्म्स? Then two forms, rapidly exchangeable and slowly exchangeable. The rapidly exchangeable calcium or exchangeable calcium, it is available in small quantity in bone and helps to maintain the plasma calcium level. जो rapidly exchangeable होती है वो बहुत छोटी क्वांटिटी में होती है, बोन में कम क्वांटिटी में होती है और ये प्लाज्मा कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखती है. और जो स्लोली एक्सचेंजेबल होती है वो स्टेबल होती है. जो रैपिडली एक्सचेंजेबल होती है वो स्टेबल नहीं होती, वो अनस्टेबल होती है और वो एक्सचेंजेबल होती है. ठीक है. और अवेलेबल इन स्मॉल क्वांटिटी इन बोन एंड हेल्प्स टू मेंटेन द प्लाज्मा कैल्शियम लेवल. ये बहुत ही कम क्वांटिटी में बोन में प्रेजेंट होती है और प्लाज्मा कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करती है. स्लोली एक्सचेंजेबल कैल्शियम और स्टेबल कैल्शियम. जो स्लोली एक्सचेंजेबल कैल्शियम है या जो स्टेबल कैल्शियम है, इट इज़ अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी इन बोन्स एंड हेल्प्स इन बोन रिमॉडलिंग. ये बोन में एक लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है और ये बोन रिमॉडलिंग में हेल्प करती है. जो रैपिडली एक्सचेंजेबल कैल्शियम है या एक्सचेंजेबल कैल्शियम है वो स्मॉल क्वांटिटी में होती है बोन्स में और प्लाज्मा कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करती है. जो स्लोली एक्सचेंजेबल है वो स्टेबल फॉर्म में होती है, वो लार्ज क्वांटिटी में होती है और वो बोन रिमॉडलिंग में हेल्प करती है. बोन रिमॉडलिंग मीन्स बोन रिजॉर्प्शन एंड बोन डिपोजिशन. बोन रिमॉडलिंग इज अ मैकेनिज्म ऑफ बोन रिजॉर्प्शन एंड डिपोजिशन. Process of calcium metabolism is explained schematically. Now this is a chart. So in diet we take almost 1000 milligram of calcium that goes in GIT and from GIT it is the absorption 600 milligram is absorbed in extracellular fluid, and from intracellular fluid how much calcium is coming? 11,000 milligram. So from GIT it is absorbed into extracellular fluid. 600 milligram is absorbed into extracellular fluid and 600 milligram is secreted back to GIT. So in extracellular fluid the total amount is 900 milligram. Rapid exchange through bone exchange calcium 4000 milligrams and stable calcium is 10 lakhs milligrams. So from stable calcium resorption occurs 300 milligram, deposition also 300 milligram, rapid exchange 20,000 milligram. Then glomerular filtrate 10,000 milligram, excreted in urine is 100 milligram, reabsorption occurs 600 milligram and excretion in fecal matter it occurs 900 milligram. So it is the whole calcium metabolism. And these all values belong to adults, not the children. Then comes the sources of calcium. Now these all are the dietary sources. Calcium is available in several foodstuffs. Percentage of calcium in different food substances is: whole milk is 10%, low fat milk is 18%, cheese 27%, other dairy products 17%, vegetables 7%. So 27, 17, 7. These we can remember. 27, 17, 7. Cheese, dairy products, vegetables. Cheese, dairy products, vegetables. 27, 17, 7. Then whole milk, it is less in whole milk but more in low fat milk. Low fat milk में 18% and whole milk में 10%. And other substances such as meat, eggs, grains, sugar, coffee, tea, chocolate, etc. In all these substances, total it is 21%. So from bones, beside dietary calcium, bone also gets calcium from bone by resorption. Dietary calcium के अलावा blood also gets calcium from bone by resorption. Blood में जो calcium है वो bone से भी आती है resorb होके. डेली रिक्वायरमेंट कैल्शियम की 1 to 3 years old में 500 मिलीग्राम चाहिए, 4 to 8 years old में 800 मिलीग्राम, 9 to 18 years old में 1300 मिलीग्राम एंड 19 to 50 years में 1000 मिलीग्राम. एंड
1 to 3 years 500 milligram, 4 to 8 years 800 milligram, 9 to 18 years 1300 milligram, 19 to 50 years 1000 milligram, 51 years and above 1200 milligram, and pregnant ladies and lactating mothers 1300 milligram. Absorption and excretion of calcium. Calcium taken through dietary sources is absorbed from GI tract into blood and distributed to various parts of the body. जो कैल्शियम है डाइटरी सोर्सेज से हमें मिलती है वो GI ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड में, और फिर वहाँ से वो ब्लड से वो बॉडी के वेरियस पार्ट्स में, जो हम कैल्शियम डाइटरी सोर्सेज से खाएंगे, जो भी हमने डाइटरी सोर्सेज लिए हैं उनसे हमें जो कैल्शियम मिली है वो जाएगी GI ट्रैक्ट में, और GI ट्रैक्ट से वो एब्जॉर्ब हो जाएगी ब्लड में, ब्लड से वो जाएगी वेरियस बॉडी पार्ट्स में. डिपेंडिंग ऑन द ब्लड लेवल द कैल्शियम इज़ आइदर डिपॉजिट. अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा है तो वो बोन्स में जाके वापस डिपॉजिट हो जाएगी. अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम है तो बोन्स में से कैल्शियम रिजॉर्व होना शुरू हो जाएगी. सो जो भी हम डाइटरी सोर्सेज से कैल्शियम इनटेक होगा हमारा, हम मिल्क से, चीज़ से, वेजिटेबल से जो भी हम कैल्शियम अपने अंदर लेके जाते हैं वो पहले GI ट्रैक्ट में एब्जॉर्ब होती है. GI ट्रैक्ट में एब्जॉर्ब होने के बाद वो ब्लड में जाती है, और ब्लड से वो हमारे वेरियस बॉडी पार्ट्स में जाती है. ठीक है, और ब्लड से जब वेरियस बॉडी पार्ट्स में जा रही होती है तो डिपेंड करता है कि जो ब्लड में जितना लेवल है कैल्शियम का उसके अकॉर्डिंग वो बोन्स में जाके डिपॉजिट होएगी या बोन्स में से रिजॉर्व हो जाएगी. ब्लड को अपना नॉर्मल कैल्शियम लेवल चाहिए ही चाहिए, दैट इज़ 9 to 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. सो अगर ब्लड में इससे ज़्यादा है कैल्शियम लेवल तो कैल्शियम बोन्स में जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी, और ब्लड में अगर कैल्शियम इससे कम है तो बोन्स में से कैल्शियम रिजॉर्व होना शुरू हो जाएगी. सो that is the reason in those people in which calcium deficiency is there, bone resorption is also there. क्योंकि कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी अगर तो ब्लड को तो अपनी नॉर्मल कैल्शियम चाहिए ही चाहिए, तो ब्लड बोन्स में से कैल्शियम रिजॉर्ब होना शुरू हो जाएगी. Absorption from GI tract. Calcium is absorbed from duodenum by carrier mediated active transport and from the rest of the स्मॉल इंटेस्टाइन बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. अब जो ड्योडिनम है वहाँ से GI ट्रैक्ट में कैल्शियम कैसे एब्जॉर्ब होती है, बाय विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. कौन से दो मैकेनिज्म है जिससे कैल्शियम एब्जॉर्ब होती है GI ट्रैक्ट से? एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. विटामिन D इज़ एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम GI ट्रैक्ट. और विटामिन D है जो वो कैल्शियम GI ट्रैक्ट में से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी है. विटामिन D जो होता है वो GI ट्रैक्ट में से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी है. देन एक्सक्रीशन वाइल पासिंग थ्रू द किडनी. लार्ज क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम इज़ फिल्टर्ड इन द ग्लोमेरुलस. जब किडनी में से पास करती है कैल्शियम तो बहुत लार्ज क्वांटिटी जो है कैल्शियम की वो फिल्टर हो जाती है ग्लोमेरुलस में से. फ्रॉम द फिल्ट्रेट 98 to 99% ऑफ कैल्शियम इज़ रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स इनटू द ब्लड. ओनली ए स्मॉल क्वांटिटी इज़ एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन. While passing through kidney, large quantity of calcium is filtered in the glomerulus. जब किडनी में से पास करती है तो बहुत जो लार्ज क्वांटिटी है वो ग्लोमेरुलस में से फिल्टर हो जाती है. फ्रॉम द फर्स्ट 98 to 99% ऑफ कैल्शियम इज रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द filtrate. 98 to 99% ऑफ कैल्शियम इज रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स इनटू द ब्लड. 98% से लेके 99% जो कैल्शियम है वो रीनल ट्यूब्यूल से रीअब्सॉर्ब होती है ब्लड में. Only small quantities excreted through urine. Most of the filtered calcium is reabsorbed in the distal convoluted tubules and PCT. जो बहुत सारा पार्ट है जो फिल्टर्ड कैल्शियम का वो DCT और PCT में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है. ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट. इन DCT पैराथॉर्मोन इंक्रीजेज द रीअब्जॉर्प्शन. DCT में क्या होता है, जो पैराथॉर्मोन होता है वो रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है. इन कलेक्टिंग डक्ट विटामिन D इंक्रीजेज द रीअब्जॉर्प्शन एंड कैल्सिटोनिन डिक्रीजेज रीअब्जॉर्प्शन. सो अब ये एक्सक्रीशन है कैल्शियम की. तो एक्सक्रीशन कहाँ से होती है? किडनी से. तो किडनी में से पास करते टाइम जो लार्ज क्वांटिटी है कैल्शियम की वो तो फिल्टर हो जाएगी, ग्लोमेरुलस में से फिल्टर हो जाएगी. अब जो फिल्ट्रेट है उसका जो 98 to 99% है वो जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं वो रीअब्जॉर्ब कर लेंगे. मतलब जो अब उसका एक्सक्रीशन हो रही है उसमें से भी 98 to 99% तो वो रीअब्जॉर्ब हो जाती है फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स में से ब्लड में. ओनली ए स्मॉल क्वांटिटी इज एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन. थोड़ी सी जो क्वांटिटी है वो ही कैल्शियम की यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होती है.
दैट इज़ ओनली 1 to 2%। बाकी की सारी जो रीएब्जॉर्ब हो जाती है रीनल ट्यूब्यूल्स की हेल्प में से ब्लड में। मोस्ट ऑफ द फिल्टर्ड कैल्शियम इज रीएब्जॉर्ब इन द डिस्टल मोस्ट जो है, अब जो रीएब्जॉर्ब होके गई है वो गई कहाँ पे है, पीसीटी और डीसीटी में। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट के पार्ट्स होते हैं पीसीटी एंड डीसीटी, उनमें प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, तो उनमें जाके रीअब्सॉर्ब हो गई है। इन डीसीटी पैराथॉर्मोन इंक्रीजेज द रीअब्सॉर्प्शन। डीसीटी में कौन सा सब्सटेंस है जो रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ाएगा, पैराथॉर्मोन। और कलेक्टिंग डक्ट में विटामिन डी इंक्रीजेज द रीअब्सॉर्प्शन, और जो कैल्सीटोनिन है वो डिक्रीज करेगा रीअब्सॉर्प्शन को। अबाउट 1000 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम इज एक्सक्रीटेड डेली। अब टोटल 1000 मिलीग्राम में कैल्शियम है जो डेली एक्सक्रीट होती है। आउट ऑफ दिस 900 मिलीग्राम इज एक्सक्रीटेड थ्रू फीसिस एंड 100 मिलीग्राम इज एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। Regulation of blood calcium level. Blood calcium level is regulated mainly by 3 hormones. First is parathormone. Second is 1,2,5-dihydroxycholecalciferol, that is also known as calcitriol. And third is calcitonin. Now parathormone. Parathormone is a protein hormone secreted by parathyroid gland. Parafollicular C cells of thyroid से secrete होता है parathormone. Calcitonin is secreted from parafollicular C cells of thyroid. Parathormone is a protein hormone secreted by parathyroid gland and its main function is to increase the blood calcium level. अब जो parathormone का main function है वो blood calcium level बढ़ाएगा। कैसे, बोन में से रिजॉर्प्शन करवा के, बोन में से कैल्शियम की रिजॉर्प्शन करवा के पैराथॉर्मोन जो है वो ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाएगा। 1,2,5-डाईहाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरोल क्या करेगा, इसका ये डिटेल चार्ट है पैराथॉर्मोन का। Decreased blood calcium level. When blood calcium level is decreased, then parathyroid is active. पैराथायरॉयड जो है ग्लैंड वो पैराथॉर्मोन सिक्रीट करेगी, देन वो बोन्स में से रिजॉर्ब करवाएगा कैल्शियम को और रिलीज करवाएगा कैल्शियम को, नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल हो जाएगा। मतलब बोन्स में से रिलीज हो जाएगी कैल्शियम तो ब्लड कैल्शियम लेवल दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। देन ब्लड में से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होगी, देन ये इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगी, देन 1,2,5-डाईहाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरोल बन जाएगा एंड डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल किडनीज पे जब एक्ट करेगा तो इट विल रिलीज 1,2,5-डाईहाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरोल, इट विल गो टू इंटेस्टाइन एंड देयर विल बी एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड अगेन blood calcium level will be normal. Whenever there is increased blood calcium level, then thyroid gland will be active, calcitonin will be secreted and it will act on the bone and it will cause the deposition of calcium in bones. So again the blood calcium level is normal. Then 1,2,5-dihydroxycholecalciferol, also known as calcitriol. Calcitriol is steroid hormone synthesized in kidney. ये एक steroid hormone है जो कि किडनी में synthesize होता है. It is the activated form of vitamin D. Vitamin D की activated form है 1,2,5-dihydroxycholecalciferol और यह calcitriol. Its main action is to increase the blood calcium level by increasing the calcium absorption from the small intestine. इसका जो मेन एक्शन है वो क्या है, ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाना। कैसे, बाय इंक्रीजिंग द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा के ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ा देगा। देन कैल्सिटोनिन इज सिक्रेटेड बाय पैराफोलिकुलर सी सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इज ए कैल्शियम लोअरिंग हार्मोन। थायराइड ग्लैंड क्या करती है, कैल्शियम को लोअर करती है। इट रिड्यूसेस द ब्लड कैल्शियम लेवल मेनली बाय डिक्रीजिंग बोन रिजॉर्प्शन। ये ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करती है कैसे, बाय डिक्रीजिंग बोन रिजॉर्प्शन को कम करके। इफेक्ट्स क्या है, बाकी हार्मोन्स के क्या इफेक्ट्स हैं, इन एडिशन टू द अबव मेंशन 3 हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस द कैल्शियम लेवल। जो हमारे ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं और जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं वो भी कैल्शियम लेवल को इन्फ्लुएंस करते हैं। हाउ, इट इज़ इंक्रीज्ड बाय पैराथॉर्मोन फ्रॉम पैराथायराइड। जो पैराथॉर्मोन है पैराथायराइड से वो इंक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को। मींस कैसे इंक्रीज करता है, बोन में से रिजॉर्प्शन करवा के। कैल्सिट्रायोल फ्रॉम किडनीज, वो भी इंक्रीज करेगा। वो कैसे करेगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ा के जीआईटी ट्रैक्ट से। एंड जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, वो भी ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करते हैं। देन ब्लड कैल्शियम लेवल इज डिक्रीज्ड बाय कैल्सीटोनिन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। जब भी नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल से ज़्यादा हो जाता है, ब्लड कैल्शियम लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो कैल्सीटोनिन विल एक्ट। सो ये क्या कराएगा, बोन्स में जाके डिपोजिशन करवाएगा कैल्शियम की और ब्लड कैल्शियम लेवल फिर से नॉर्मल हो जाएगा। एंड कॉर्टिसोल फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स, इट विल ऑल्सो कोज
It will also cause cortisol from adrenal cortex. It will also cause deposition of calcium into the bones, and it will again the blood calcium level will again reach to normal.